Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mrs. Shimi Mathar, Senior Subject Specialist Chemistry at Divisional Public School and College, Sahiwal. We are going to start the next chapter, that is chapter number 11. It is about alcohols, phenols and ethers. The topics of discussion are introduction of alcohols, phenols and ethers, and nomenclature of alcohols, phenols and ethers. We will also solve question number 18 and question number 19 from exercise. The learning objectives of this lesson are: by the end of lecture, you can differentiate between alcohols, ethers and phenols. You can also name simple monohydric and polyhydric alcohols. You can differentiate between primary, secondary and tertiary alcohols. Then by the end of lesson, you will be able to name ethers and phenols and questions related to these topics. So let's start our today's lesson. First of all, general introduction of these classes of organic compounds, alcohols, phenols and ethers. These are called as hydroxy derivatives of water. These are called as derivatives of water. These organic compounds, they are much closer to water in structure. That's why we call them derivatives of water. वाटर का स्ट्रक्चर बेटा आपको पता है कि एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन एटम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ ज्वाइन होते हैं और ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर्स हैं? 2 लोन पेयर्स. लोन पेयर्स क्या होते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दे आर कॉल्ड एज लोन पेयर्स. अब अगर हम अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है जस्ट लाइक वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है, हैविंग 2 लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन और वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ वाटर दैट इज रिप्लेस्ड विद आर. आर क्या है? एल्काइल ग्रुप. और आपने प्रीवियस लेसन्स में ये पढ़ा हुआ है कि एल्काइल ग्रुप कैसे बनता है? विद द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम द एल्केन. जब आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, रिमेनिंग स्पीशीज कॉल्ड एज एल्काइल ग्रुप. जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर. और जिस एल्केन से आप रिमूव करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसका नेम होगा. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आपका जो एल्केन है दैट इज मीथेन. मीथेन में से जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, रिमेनिंग ग्रुप इज मिथाइल. सो इन केस ऑफ एल्कोहल्स, one of the hydrogen of water that is replaced with R. Look at phenol. ये जो hydroxyl group है that is same just like water, having 2 lone pairs on oxygen, and this group, this hydrogen of water that is replaced with phenyl group. ये phenyl group कहाँ से आया? C6H5. When one hydrogen is removed from benzene, the remaining group is called as phenyl group. So this class is called as phenol. नेक्स्ट वन इज ईथर. ईथर में जो है दोनों हाइड्रोजन वाटर के दे आर रिप्लेस्ड विद आर. आर इज एल्काइल और फिनाइल ग्रुप्स. सो alcohols and phenols, because they have hydroxyl group, that is why they are much close to one another in structure and properties. उसकी रीजन क्या है कि दोनों में अल्कोहल और फिनोल्स में one of the group that is hydroxyl group and that is the common group present in both alcohols and phenols. So we also call them hydroxy derivatives of alkanes. Alcohols क्या हैं? Hydroxy derivatives of alkanes. और phenols क्या हैं? Hydroxy derivatives of benzene. कि बेंजीन के एक हाइड्रोजन की जगह कौन सा ग्रुप लग गया इन केस ऑफ फिनोल? हाइड्रोक्सिल ग्रुप. और एल्केन्स के एक हाइड्रोजन की जगह कौन सा ग्रुप लग गया? हाइड्रोक्सिल. सो वी कॉल देम हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स एंड हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन respectively. In ether, both of the hydrogen of water, they are replaced with alkyl group or phenyl group. R भी हो सकते हैं और दोनों phenyl group भी हो सकते हैं. So alcohol and phenol, they are resemble in properties, in structure with each other. लेकिन जो ether है उसकी properties जो हैं they are different. नेक्स्ट बेटा हम सेपरेटली
हर क्लास को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल्स। जो मेन पॉइंट्स आपने इसमें याद रखने हैं कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्रेजेंटेड एज OH। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which gives characteristic features to an organic compound, that group is called as functional group। और फंक्शनल ग्रुप हम किसकी जगह लगाते हैं? जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। एल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। और जब एल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो रिमेनिंग जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज एल्काइल ग्रुप रिप्रेजेंटेड बाय R। अच्छा बेटा, सेकंड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड। जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप अटैच होगा दैट मस्ट बी sp3 हिब्रिडाइज्ड। ये MCQ के लिए भी आपने याद रखना है। sp3 हिब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा है कि जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनके अंदर sp3 हिब्रिडाइजेशन है। तो कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप अटैच होगा दैट मस्ट बी sp3 हिब्रिडाइज्ड। उसकी हिब्रिडाइजेशन कैसी होनी चाहिए? sp3 हिब्रिडाइजेशन। देन जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कोहल इज ROH। R जो है दैट इज एल्काइल ग्रुप और OH इज अ फंक्शनल ग्रुप। ये जो प्रॉपर्टीज हैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की दैट इज बेस्ड ऑन OH, जो फंक्शनल पार्ट है उस पर डिपेंड करेंगी। R इज एन एल्काइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट एल्काइल ग्रुप कौन सा है? मिथाइल ग्रुप। जो मीथेन की एक हाइड्रोजन जब हम रिमूव करते हैं तो दिस वन इज मिथाइल ग्रुप। नेक्स्ट वन इज इथाइल। जब हम इथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? इथाइल। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन जो बेटा R का हम पहले नेम बोलेंगे मिथाइल और बाद में हम क्या यूज करेंगे? एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। This one is ethyl alcohol having 3 carbon and propyl alcohol। और ये भी 3 कार्बन है लेकिन ये आइसो है, ब्रांच में है, तो हम इसको क्या कहेंगे? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। These are all the examples of alcohols। In classifications of alcohols on the basis of OH groups, how many OH groups are attached with the R? इस बेस पे एल्कोहल्स जो हैं दो मेन क्लासेस में उनको डिवाइड किया गया है, मोनोहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। लेकिन पॉलीहाइड्रिक आगे फर्दर डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक उसमें डिवाइड है। तो मोनो फर्स्ट वन इज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। मोनो का क्या मतलब है? 1। ऐसे एल्कोहल्स जिसमें 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, compounds containing 1 OH group, they are called as monohydric alcohols। ये जो कॉमन एग्जांपल्स हैं मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, इन सब में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये किस कैटेगरी में आती है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। पॉलीहाइड्रिक में नंबर 1 इज डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। डाई का मतलब है 2। कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे आर कॉल्ड एज डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। और वैसे डायोल्स, इनको दूसरा क्या वर्ड इनके लिए हम यूज करते हैं? डायोल्स। एग्जांपल आप बेटा इसकी क्या है? ग्लाइकोल, CH2 ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, पेरेंट मॉलिक्यूल जिसको हम इथेन कहते हैं। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप लगा दिया और इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन की जगह कौन सा ग्रुप लगा दिया? OH। हाउ मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट? 2। सो इसको हम क्या कहेंगे? 1,2 इथेन डायोल या ग्लाइकोल। कॉमन नेम इज ग्लाइकोल और इसका IUPAC के अकॉर्डिंग क्या नेम है? 1,2 इथेन डायोल। जितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो बाद में हम बोलेंगे डायोल, और जिस पोजीशंस पे वो प्रेजेंट है उनको हम पहले मेंशन करेंगे 1, 2 और उसके बाद जो पेरेंट मॉलिक्यूल है आपका इथेन डायोल। नेक्स्ट वन इज ट्राईहाइड्रिक। कंपाउंड्स कंटेनिंग 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स दे आर कॉल्ड एज ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स। 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो हम उनको क्या कहते हैं? ट्राईहाइड्रिक, और सिंपली दे आर कॉल्ड एज ट्रायोल्स। लुक एट द एग्जांपल।
ये 3 कार्बन का पेरेंट मॉलिक्यूल है, दैट इज प्रोपेन, और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन की जगह कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल, and commonly it is called as glycerol. Alcohols having more than one hydroxyl groups, they are termed as polyhydric. So dihydric, trihydric, they are the examples of polyhydric alcohols having more than one hydroxyl group. Next बेटा हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं जिनमें वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उनकी आगे वो फर्दर कितनी क्लासेस में डिवाइड हो सकते हैं, दे मे बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल्स। अब प्राइमरी एल्कोहल कौन सा होगा कि OH ग्रुप व्हेन अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन, इफ OH ग्रुप इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी एल्कोहल। अब प्राइमरी कार्बन आपने पहले भी देखा होगा, ये जो मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है ये प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन क्या होता है, carbon to which functional group is attached, carbon to which functional group is attached, इस कार्बन के साथ OH functional group अटैच है, that is further attached with one carbon direct और no carbon। ये कार्बन R के साथ बॉन्ड बना रहा है और R की किस चीज के साथ बॉन्ड, R जितना मर्जी लंबा हो, ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। सो डायरेक्ट लिंकेज इसकी किसके साथ है, कितने कार्बन के साथ है, वन कार्बन। सो दैट कार्बन विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन। या तो इसका किसी के साथ लिंक ना हो, जैसे मिथाइल एल्कोहल है। अब मिथाइल एल्कोहल में CH के साथ OH ग्रुप अटैच है, एक ही कार्बन है और वो किसी के साथ फर्दर अटैच नहीं, सो दैट इज ऑल्सो प्राइमरी एल्कोहल। लेकिन ऐसा कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, दैट इज directly attached with one carbon or no carbon, that is primary carbon, and that compound is called as primary compound. अब इस केस में पर्टिकुलर हमारा जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल, इफ OH ग्रुप इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन, लुक एट दिस वन, ये कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, डायरेक्टली कितने R के साथ उसकी अटैचमेंट है, 2 के साथ। इस कार्बन की 2 कार्बन्स के साथ अटैचमेंट है। इफ अ कार्बन टू विच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड is directly linked with 2 carbon, that is called as secondary carbon, and that alcohol will be called as secondary alcohol. Next one is tertiary alcohols. If OH group is attached to tertiary carbon, it is called as tertiary alcohol. Look at this one. ये जो कार्बन है जिसके साथ OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये डायरेक्टली कितने कार्बन्स के साथ अटैच है, 3 कार्बन्स के साथ अटैच। बेटा R ग्रुप में भी ये कार्बन जब बॉन्ड बनाएगी तो वो कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाएगी और इसकी डायरेक्ट लिंकेज है, तीनों साइड्स पे ये डायरेक्टली लिंक करता है। सो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, टर्शियरी कंपाउंड। और अगर फंक्शनल ग्रुप हमारा OH है, जैसे हम एल्कोहल्स की बात कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्शियरी एल्कोहल। सो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स डिपेंडिंग अपॉन OH ग्रुप किसके साथ अटैच है। नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। मोस्टली देयर आर 2 सिस्टम्स ऑफ नेमिंग एल्कोहल्स। जैसे आपने प्रीवियस जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको नेम देने के मेथड्स आप पढ़ चुके हैं। जनरल मेथड्स, जनरल पॉइंट्स जो हैं वो सेम है। एल्कोहल्स को भी जब हम नेम देते हैं, देयर आर 2 सिस्टम्स ऑफ नेमिंग एल्कोहल्स। फर्स्ट वन इज कॉमन और ट्राइवियल नेम्स। कॉमन वे में या कॉमन सिस्टम में एल्कोहल्स दे आर नेम्ड एज एल्काइल एल्कोहल्स। क्या कहते हैं इनको, एल्काइल एल्कोहल। एल्काइल जो भी होगा उसका नेम आप बोलेंगे और साथ हम क्या लगा देंगे, एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल। द एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द OH is named and alcohol is added as a separate word. Very simple. Let's look at this one. एल्काइल ग्रुप क्या है, मिथाइल, और साथ हम OH ग्रुप अटैच है तो हम क्या कहेंगे, मिथाइल एल्कोहल, देन इथाइल एल्कोहल, देन एन प्रोपाइल एल्कोहल, and this one is isopropyl alcohol. So commonly
एल्कोहल्स को नेम देना हो कॉमन सिस्टम में तो इनको हम क्या कहते हैं, एल्काइल एल्कोहल्स। एल्काइल का नेम लिखने के बाद जो भी एल्काइल ग्रुप अटैच है और उसके बाद नेक्स्ट हम सेपरेट वर्ड के तौर पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एल्कोहल्स। सो मिथाइल, इथाइल एंड प्रोपाइल एल्कोहल, ये कॉमन सिस्टम है जिसमें हम एल्कोहल्स को नेम देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम सीरीज में हायर साइड पे मूव करते हैं, it becomes necessary to indicate whether a particular alcohol is primary, secondary or tertiary। बेटा ये जो 1 के ऊपर 0 है ये भी किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, प्राइमरी को। 2, 3 अगर कहीं पे इस तरह आपको इंडिकेशन हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को इंडिकेट कर रहा है। द प्रीफिक्स सेकेंडरी इज एब्रीवेटेड एज सेक एंड टर्शियरी इज एब्रीवेटेड एज टर्ट और टी। ये स्टार्ट में हमने मेंशन करना है। सो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज 4 कार्बन है तो ये हमारा ब्यूटेन है, ब्यूटाइल ग्रुप है और हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप है। एन ब्यूटाइल एल्कोहल, ये R ग्रुप है और साथ हमने सेपरेट वर्ड एल्कोहल यूज कर लिया। नेक्स्ट आप देख लें 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे भी हमारा कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है that is further linked with 2 carbon, directly 2 carbon के साथ लिंक है, तो this carbon is secondary carbon, so we will write sec butyl alcohol, sec for secondary butyl alcohol। नेक्स्ट हम देखते हैं ये कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है that is directly linked with how many carbon, 3 carbon, so this carbon is tertiary carbon and this alcohol will be tertiary butyl alcohol। टर्शियरी के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स टर्ट, टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। सो हायर जैसे जैसे हम जाएंगे सीरीज में तो फिर हमने लाजमी है ये इंडिकेट करना कि ये जो भी एल्कोहल है ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी एल्कोहल्स है। तो इस तरीके से हम कॉमनली जो है कॉमन सिस्टम में एल्कोहल्स को नेम देते हैं। IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं, उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि एल्कोहल्स को कैसे नेम देंगे। लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स containing the hydroxyl group is taken as the parent hydrocarbon। बेटा सबसे पहला पॉइंट वाकई भी आपने जो नेमिंग पढ़ी है उसमें फर्स्ट वन यही होता है पॉइंट कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। अब एल्कोहल्स के केस में आपने जो पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है उसमें लाजमी है कि OH ग्रुप प्रेजेंट हो, अदरवाइज तो वो एल्कोहल नहीं होगा। सो जो भी चेन आपने सिलेक्ट करनी है उसमें OH ग्रुप जो है दैट मस्ट बी प्रेजेंट, वो आपने एज अ लॉन्गेस्ट चेन जो है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, वो आपका पेरेंट हाइड्रोकार्बन होगा। फॉर एग्जांपल 4 कार्बन है तो आप कह सकते हैं कि वो ब्यूटेन है, 5 कार्बन है तो वो पेंटेन है, जैसे कि आपको पता है। अब जो एल्केन का E होगा एंडिंग E दैट इज रिप्लेस्ड बाय OL, कि अगर वो फॉर एग्जांपल पेंटेन है तो E की जगह, पेंटेन की E की जगह हम क्या लगाएंगे, OL, पेंटानॉल, पेंटानॉल। इसी तरह अगर वो प्रोपेन है तो इट विल बी प्रोपानोल। जो मेन आपका पेरेंट हाइड्रोकार्बन है जो आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की है उसमें जितने कार्बन होंगे उसके अकॉर्डिंग वो एल्केन होगा, पेरेंट हाइड्रोकार्बन होगा। और उसमें एल्कोहल्स के केस में हमने जो लास्ट E है उसको OL के साथ रिप्लेस कर देना है। एग्जाम्पल्स आप बेटा चेक कर लें। फर्स्ट वन 1 कार्बन है तो मीथेन है, मीथेन का मतलब है कि हमने मीथेन का E जो है उसको OL के साथ रिप्लेस कर दिया, इट इज मीथानॉल। 3 कार्बन है तो प्रोपेन है, प्रोपेन का E दैट इज रिप्लेस्ड विद OL, प्रोपानॉल। 5 कार्बन है तो इट इज पेंटेन, पेंटेन का E जो है दैट इज रिप्लेस्ड विद OL, इट इज पेंटानॉल। इसको आप ओपन करके भी लिख सकते हैं, मैंने उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है कंबाइन करके, आप इसको ओपन करके भी लिखें। आपने वो वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो आपका पेरेंट हाइड्रोकार्बन होगा, पेरेंट एल्केन होगा और उस जो भी उसका नेम है उसके लास्ट में E की जगह आपने OL लगा देना है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। लुक एट द सेकंड वन। अब हमने ये देखना है कि पोजीशन ऑफ OH ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय अ नंबर प्लेस्ड बिफोर द नेम।
जो भी वो अल्कोहल होगा जिस कार्बन के वो OH ग्रुप अटैच है, आपने वो कार्बन की पोजीशन जो है नेम से पहले मेंशन करनी है कि 1 पे अटैच है OH ग्रुप या सेकंड कार्बन के साथ अटैच है, थर्ड कार्बन के साथ अटैच है। ये लाजमी है कि पोजीशन ऑफ द OH ग्रुप जो है उसको आपने इंडिकेट करना है बाय अ नंबर प्लेस्ड बिफोर द नेम। और कार्बन चेन की नंबरिंग कैसे करनी है बेटा, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड where carbon atom attached with OH group gets the lowest possible number। आप उस साइड से सिलेक्ट करेंगे कि वो कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है that will get the lowest position। Look at the first one एग्जाम्पल, हम इसकी भी देख लेते हैं। ये इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4। दिस इज ब्यूटेन। किस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है, फर्स्ट कार्बन के साथ। और ब्यूटेन में E को रिप्लेस कर दो OL के साथ, ब्यूटानॉल, 1 ब्यूटानॉल। पोजीशन हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जिस कार्बन के साथ अटैच है मेंशन की, और ब्यूटानॉल। लुक एट द नेक्स्ट वन, 1 2 3 4। ये भी क्या है, ब्यूटानॉल, लेकिन किस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है, सेकेंड कार्बन के साथ। सो 2 ब्यूटानॉल, 2 ब्यूटान। OH ग्रुप किसके साथ अटैच है, सेकेंड कार्बन के साथ, सो दैट इज ब्यूटानॉल। अब जब आप इसकी नंबरिंग करेंगे तो हम इस साइड से अगर स्टार्ट करते हैं तो दैट इज रॉन्ग। इसमें ये थर्ड कार्बन के साथ आता है, हमने इस साइड से स्टार्ट करें तो OH ग्रुप सेकेंड कार्बन के साथ आता है, सो दैट इज करेक्ट कि आपने उस एंड से स्टार्ट करनी है जहां पे वो कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है दैट विल गेट द लोएस्ट पोजीशन। लुक एट द थर्ड पॉइंट, इफ मोर देन 1 OH ग्रुप्स आर अटैच्ड, अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप अटैच है तो दे आर इंडिकेटेड बाय एन अप्रोप्रिएट सफिक्स डायोल, ट्रायोल। ये पहले भी हमने टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स में भी पढ़ा कि दे मे बी पॉलीहाइड्रिक और उसमें डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक के एग्जांपल हमने डिस्कस किए हैं। तो इसमें भी कि अगर एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे तो फिर उनको हम एंड में क्या लगाएंगे, डायोल या ट्रायोल। लुक एट द फर्स्ट वन, ये एग्जांपल आप देखें, इसमें ये आपका ईथेन है, 2 कार्बन है तो ईथेन, और दोनों कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 2 ईथेन। 1 2 पहले पोजीशंस को बताएंगे, फिर जो आपका पेरेंट हाइड्रोकार्बन है 1 2 ईथेन डायोल। 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं तो डायोल, और कॉमनली इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोल। 3 कार्बन में देखें, ये आपका प्रोपेन है, और 1 2 3 तीनों पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, 1 2 3 प्रोपेन और ट्रायोल, एंड कॉमन नेम इज ग्लिसरॉल। सो अगर एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ तो फिर हम सफिक्स के तौर पे क्या यूज करेंगे, डायोल और ट्रायोल, जैसे कि ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल के केस में है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट इज, अगर बेटा जो आपका अल्कोहल है वो अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेशन कैसे होती है, जब कार्बन चेन के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आपने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन तो वही सिलेक्ट करनी है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, लेकिन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड इज आल्सो अ फंक्शनल ग्रुप। तो अब हमने इस केस में कैसे करनी है नंबरिंग, हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही हमारा प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप है, हमने उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है कि कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड दैट विल गेट द लोएस्ट पोजीशन। मतलब हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रेफर करना है, अनसैचुरेशन को प्रेफर नहीं करना। लुक एट दिस वन, ये आपका जो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, इसमें भी अगर आप देखें यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 कार्बन है, तो दिस इज ब्यूटीन। अब हमने नंबरिंग यहाँ से ही स्टार्ट करनी है। OH ग्रुप जो है वो 1 कार्बन के साथ अटैच है और सेकेंड कार्बन पे अनसैचुरेशन है, तो हम लिखने में जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसका पहले नंबर शो करेंगे 2 ब्यूटेन, और फिर जिस कार्बन के साथ OH अटैच है 1 और ऑल, 1 ऑल, 2 ब्यूटेन 1 ऑल, 2
2 ब्यूटीन 1 ओल। नंबरिंग हमने उसी तरह स्टार्ट करनी है जिसमें OH ग्रुप इज प्रेफर्ड rather than unsaturation। लेकिन जब बेटा नेम लिखना है तो हमने अनसैचुरेशन वाला कार्बन उसको पहले मेंशन करना है, फिर हम पेरेंट नेम जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उसको मेंशन करेंगे और फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसकी पोजीशन और एंड में क्या मेंशन करेंगे, ओल। एंड द लास्ट पॉइंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड। अब इसमें जो पॉइंट गिवन है इसमें बेटा दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक OH जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अल्कोहल्स की हम बात करें और दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप। अब इसमें भी देखिए OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिल ग्रुप। अब इन केस में जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों हों तो फिर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कार्बोक्सिल ग्रुप इज प्रेफर्ड ओवर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप। और ये बात आपने याद रखनी है MCQ के लिए भी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नॉट प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये इन केसेस में अगर ये दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट हो, हाइड्रोक्सिल के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो तो कार्बोक्सिल ग्रुप विल बी प्रेफर्ड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट विल बी टेकन एज अ सब्स्टिट्यूएंट। इसी तरह अगर हाइड्रोक्सिल के साथ एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो तो एल्डिहाइड ग्रुप जो है दैट इज प्रेफर्ड, मेन जो कंपाउंड होगा वो एल्डिहाइड के अकॉर्डिंग होगा, OH ग्रुप जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम उसको इंडिकेट करेंगे। सेम इज द केस विद कीटोन्स। सो इन तीन कंपाउंड्स के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अगर आपका OH ग्रुप साथ प्रेजेंट है तो दीज फंक्शनल ग्रुप्स दे विल बी प्रेफर्ड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट विल बी टेकन एज अ सब्स्टिट्यूएंट। सो इसमें अब फर्स्ट जो कंपाउंड है इसमें OH ग्रुप भी है और कार्बोक्सिल ग्रुप भी। कार्बोक्सिल ग्रुप वाला जो कार्बन होता है ना वो भी जब हम काउंटिंग करते हैं तो वो अंदर ही काउंट होता है। सो 1 2 3 1 2 3 किसी भी साइड से आप काउंट करें तो ये जो है इसकी पोजीशन जो है हम सेकंड ही बनती है 1 2 3। सो 2 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है 2 हाइड्रोक्सी, सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है, हाइड्रोक्सी। और 3 कार्बन है तो हम इसको क्या बोलेंगे, जो प्रोपेन है प्रोपेन का E दैट इज रिप्लेस्ड विद OIC एसिड, ओइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। अल्कोहल्स में तो हम कहते हैं कि अल्केन का E जो है दैट इज रिप्लेस्ड विद OL, जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में E जो है दैट इज रिप्लेस्ड विद ओइक एसिड, OIC एसिड। सो इसमें 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, कॉमनली इट इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड। लुक एट दिस वन, इसमें अब आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी 2 है और कार्बोक्सिल ग्रुप भी। हम यहाँ से अगर नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4, सो सेकंड कार्बन के साथ और थर्ड कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है 2 3 डाइहाइड्रोक्सी। 4 कार्बन है तो इट इज ब्यूटेन और फर्स्ट एंड फोर्थ डायोइक एसिड, जैसे डायोल्स कहते हैं इस केस में हम क्या कहेंगे, डायोइक एसिड। सो कॉमन नेम इट इज कॉल्ड एज टार्टरिक एसिड। दिस इज ऑल अबाउट नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स in IUPAC system. Next class जो हम डिस्कस करेंगे that is phenol. So first of all we will introduce phenol कि phenol है क्या। These are the compounds containing an OH group attached directly to an aromatic ring. Aromatic ring क्या होता है, aromatic बेटा वो compounds जिसमें at least one benzene ring present हो उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो इसमें एरोमेटिक जो बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 और उसके एक हाइड्रोजन की जगह कौन सा ग्रुप अटैच है, OH ग्रुप। जब एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्टली एक OH ग्रुप अटैच होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। बाय डेफिनेशन दे आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन and these compounds they are named as phenol. The simplest example, जो सबसे
सिंपल मॉलिक्यूल है इस क्लास का, उसको हम क्या कहते हैं, फिनोल, और कॉमनली नोन एज कार्बोलिक एसिड हैविंग फॉर्मूला C6H5OH। C6H5 क्या है, बेंजीन। बेंजीन के एक हाइड्रोजन की जगह कौन सा ग्रुप है, OH, दैट इज व्हाई वी कॉल इट हाइड्रोक्सी बेंजीन। और ये कहां से ऑब्टेन हुआ फर्स्ट टाइम, फ्रॉम कोल टार। कोल टार क्या है, दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ कोल। जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई प्रेशर, व्हाट हैपेंस कि उसमें से जो एक कंपोनेंट निकलता है, एक फ्रैक्शन जो निकलता है, दैट इज कोल टार। सो कोल टार के अंदर जो है डिफरेंट एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट थे, फिनोल वाज वन ऑफ देम। और फर्स्ट टाइम किसने इसको डिस्कवर किया, ऑब्टेन किया, रंकी इन 1834। एमसीक्यू के लिए आपने याद रखने हैं कि फिनोल्स क्या हैं, दे आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। जो सबसे पहला सिंपल मॉलिक्यूल है इस क्लास का, दैट इज फिनोल। उसका फॉर्मूला क्या है, C6H5OH एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड। रंगी इन 1834 इसने फर्स्ट टाइम इसको ऑब्टेन किया फ्रॉम कोल टार। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इनको नेम कैसे देते हैं। नोमेनक्लेचर फिनोल्स का कॉमन और IUPAC सिस्टम में ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम चेक कर लेते हैं कि कॉमन सिस्टम क्या है और IUPAC सिस्टम में फिनोल्स को कैसे नेम देते हैं। चलो बेटा, पेरेंट मॉलिक्यूल इज फिनोल। कॉमन सिस्टम में जब हम नोमेनक्लेचर यूज करते हैं तो जो आपका पेरेंट मॉलिक्यूल है उसको हम फिनोल ही कंसिडर करेंगे। और फिनोल हमने जैसे देखा कि बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अगर OH ग्रुप अटैच है तो देन इट इज फिनोल, और सबसे सिंपल मॉलिक्यूल भी हमारा फिनोल ही है। सो कॉमन सिस्टम में पेरेंट मॉलिक्यूल हमारा फिनोल ही होगा। व्हेन अ फिनोल मॉलिक्यूल इज सब्स्टिट्यूटेड विद एडिशनल ग्रुप्स, अब अगर फिनोल में किसी और पोजीशन पे कार्बन के साथ कोई एडिशनल ग्रुप्स अटैच हैं तो फिर हम उनको ऑर्थो, मेटा, पैरा सिस्टम या नंबरिंग सिस्टम जो है वो उस पे अप्लाई करेंगे। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा सिस्टम ये भी हम डिस्कस करते हैं। पहले भी आपने पढ़ा होगा कि ऑर्थो, मेटा और पैरा सिस्टम क्या होता है। IUPAC सिस्टम में फिनोल इज कॉल्ड बेंजीनोल। कॉमन सिस्टम में पेरेंट मॉलिक्यूल क्या होगा, फिनोल। IUPAC सिस्टम में फिनोल ही पेरेंट मॉलिक्यूल है लेकिन उसको क्या कहते हैं, बेंजीनोल। लेकिन हम IUPAC सिस्टम में फिनोल भी अगर मेंशन कर दें तो वो रॉन्ग नहीं होगा क्योंकि मोस्टली फिनोल इज प्रेफर्ड। सो इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन और IUPAC सिस्टम में हम पेरेंट मॉलिक्यूल जो है उसको फिनोल ही कंसिडर करते हैं। लेकिन ये आपने याद रखना है कि IUPAC सिस्टम में फिनोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेंजीनोल। पेरेंट मॉलिक्यूल अगर हम फिनोल ही कंसिडर करें तो सब्स्टिट्यूएंट्स दे आर ऑलवेज नंबर्ड विद OH ग्रुप गिवन द फर्स्ट पोजीशन। अगर OH के अलावा, OH तो फिनोल है ना, अगर उस रिंग में कोई और सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप्स भी प्रेजेंट हैं तो फिर हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है कि OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है दैट विल ऑलवेज गेट द फर्स्ट पोजीशन। OH हमेशा नंबर 1 पे होगा और बाकी फिर सब्स्टिट्यूएंट जो है उसकी हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। लुक एट दीज स्ट्रक्चर्स। इसमें बेटा आप ये देखें कि हम अगर CH3 ग्रुप को कंसिडर ना करें तो ये हमारा कंपाउंड क्या है, फिनोल। और जो कॉमनली हम इसको क्या कहते हैं, पेरेंट मॉलिक्यूल को फिनोल, और IUPAC में बेंजीनोल। और बेंजीनोल और ज्यादातर उसमें भी हम क्या किस चीज को प्रेफर करते हैं, फिनोल को। तो ये हमारा फिनोल ही है। अब हम जब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। 2 पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल, तो हम उसको क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल फिनोल या 2 मिथाइल बेंजीनोल। ये IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका नेम है कि हम पेरेंट मॉलिक्यूल को फिनोल या बेंजीनोल कंसिडर करेंगे और OH ग्रुप जो है वो हमेशा नंबर 1 पोजीशन होगी और बाकी सब्स्टिट्यूएंट उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी नंबरिंग हम देंगे। और पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का कि किस पोजीशन पे अटैच है, फिर उसका नेम, और उसके बाद पेरेंट मॉलिक्यूल हमारा क्या है, फिनोल और बेंजीनोल। अच्छा, इससे कॉमन नेम इसका क्या है, ओक्रीसोल।
O फॉर ऑर्थो। अब ऑर्थो पोजीशन क्या होती है, वो हमने फर्स्ट जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है इसके रेफरेंस से जो आपकी सेकंड कार्बन होगा, जो सेकंड पोजीशन होगी, दिस पोजीशन इज ऑर्थो। फर्स्ट के रेफरेंस से जो थर्ड पोजीशन होगी दैट विल बी बेटा, और फर्स्ट के रेफरेंस से जो फोर्थ पोजीशन होगी दैट विल बी पैरा। ये दोनों साइड से एक जैसा है, दिस वन इज ऑल्सो ऑर्थो, फिर मेटा और पैरा, सो कॉमनली इट इज ऑर्थोक्रीसोल। अब नेक्स्ट में कॉमनली क्या होगा, ये किस पोजीशन पे है, मेटाक्रीसोल। अब इसकी पोजीशन अगर हम फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये थर्ड पे है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेटाक्रीसोल। और जो IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 मिथाइल फिनोल या 3 मिथाइल बेंजीनोल। लुक एट द नेक्स्ट वन, कॉमनली इट इज पैरा। ये कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन है, तो पैराक्रीसोल या 4 मिथाइल फिनोल और 4 मिथाइल बेंजीनोल। सो ये ऑर्थो, मेटा और पैरा ये कॉमन नेम्स हैं, और जो मैंने नंबर्स के साथ आपके साथ शेयर किए हैं ये इनके IUPAC सिस्टम है। पेरेंट मॉलिक्यूल इसमें फिनोल ही है, IUPAC में उसको बेंजीनोल कहते हैं, लेकिन अगर फिनोल भी लिखा हो तो दैट इज नॉट रॉन्ग। और जब आप नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है दैट विल ऑलवेज गेट द फर्स्ट पोजीशन, और बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स को उसके अकॉर्डिंगली नेम देंगे और फिर हम उसके नेम्स जो है वो आप बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को भी देखें। अब बेटा इन तीनों स्ट्रक्चर्स में आपके पास जो दोनों ग्रुप्स हैं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। अगर हम एक हाइड्रोक्सिल को तो पेरेंट मॉलिक्यूल कंसिडर कर लें तो वो फिनोल है, दूसरा जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा। इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं। एक तो आप ये देखिए बेटा कि OH ग्रुप जो है वो किस कार्बन के साथ है, सेकंड कार्बन, सो 2 हाइड्रोक्सी फिनोल, 2 हाइड्रोक्सी फिनोल, कॉमन नेम इज कैटकोल, कैटकोल, ठीक है, इसको कैटकोल भी बोलते हैं, 2 हाइड्रोक्सी फिनोल। या बेटा हम इसको क्या कह सकते हैं, 1,2 बेंजीन है, बेंजीन डायोल, जैसे वो हमने प्रीवियसली अल्कोहल्स में पढ़ा था ना कि 1,2 इथेन डायोल, जैसे एलिफेटिक अल्कोहल्स को नेम देते हैं, फिनोल्स भी उसी तरीके से हम नेम देंगे। 1,2 जो आपका पेरेंट मॉलिक्यूल है वो बेंजीन है, बेंजीन डायोल, या हम इसको 2 हाइड्रोक्सी फिनोल भी कह सकते हैं। लुक एट द नेक्स्ट वन, इसमें आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो किस पोजीशन पे आता है, 3 हाइड्रोक्सी फिनोल या 1,3 बेंजीन डायोल, 1,3 बेंजीन डायोल या 3 हाइड्रोक्सी फिनोल, या हम इसका कॉमन नेम क्या है, रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल। इसमें हम क्या कहेंगे, 4 हाइड्रोक्सी फिनोल या 1,4 बेंजीन डायोल, या इसका कॉमन नेम क्या है, हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन। लुक एट दीज एग्जांपल्स, दिस इज सिंपल वन फिनोल, या फिनोल को हम और क्या कहते हैं, बेंजीनोल। लुक एट दिस वन, इसमें अब जो क्लोरो ग्रुप है वो किस पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे, पैरा क्लोरोफिनोल, पेरेंट आपका फिनोल ही है, पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच है, क्लोरो, पैरा क्लोरोफिनोल, दिस इज द कॉमन नेम। और जब हम उसकी नंबरिंग शो कर देंगे तो वो IUPAC नेम होगा 4 क्लोरोफिनोल। क्लोरो जो है वो किस पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे। दोनों साइड से बेटा हम काउंट करें 1 2 3 4, और इधर से भी जब हम नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4, 4 क्लोरोफिनोल या 4 क्लोरोबेंजीनोल। लुक एट दिस वन, ये कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन, मेटा नाइट्रोफिनोल या 1 2 3 नाइट्रो बेंजीनोल या 3 नाइट्रोफिनोल। ऊपर वाला जो है ये कॉमन नेम है और नीचे वाला जो है ये IUPAC के अकॉर्डिंग है। इसमें आप देख लें 3,5 डाइनाइट्रोफिनोल या 3,5 डाइनाइट्रोबेंजीनोल। So this is all about the naming of phenols. थर्ड क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो अभी हम डिस्कस करते हैं दैट इज ईथर्स। तो फर्स्ट वी विल सी
जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईथर्स, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? सो कंपाउंड्स इन विच ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू टू ऑर्गेनिक ग्रुप्स, दे आर कॉल्ड एज ईथर्स। ऑक्सीजन जो है वो दो ऑर्गेनिक ग्रुप से, ऑर्गेनिक ग्रुप्स मे बी अल्काइल मे बी फिनाइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है? बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन एंड रिप्रेजेंटेड बाय R। और फिनाइल ग्रुप कैसे बनता है? बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम बेंजीन, और बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो रिमेनिंग स्पीशीज C6H5 that is called as phenyl group. So oxygen atom that is present in center and both the organic groups whether they are alkyl or phenyl they are attached with oxygen. जनरल फॉर्मूला ईथर्स का क्या है? ROR। जनरली हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ROR के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। R जो है दैट मे बी अल्काइल मे बी फिनाइल। एग्जांपल्स बेटा आप देख लें, CH3CH2 ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल। ये भी कौन सा ग्रुप है? इथाइल। दो साइड पे R ग्रुप्स प्रेजेंट है और सेंटर में ऑक्सीजन के साथ बाइंड है। दोनों क्योंकि सेम है तो इसके लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे? डाई। डाई इथाइल और ईथर एज अ सेपरेट वर्ड आप यूज कर देंगे। लुक एट द नेक्स्ट वन, इसमें ये है मिथाइल, ये इथाइल ग्रुप और दोनों ऑक्सीजन के साथ बाइंड है, दोनों डिफरेंट है। जब दोनों R ग्रुप्स डिफरेंट होंगे तो फिर हमने अल्फाबेटिकली उनको नेम देना होता है। इथाइल मिथाइल से E पहले आता है तो इथाइल मिथाइल ईथर। These are the examples of ethers. अच्छा बेटा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो R groups attached हैं with oxygen, whether they are identical or different. इस बेस पे they are divided into two different types, symmetrical ethers and unsymmetrical ethers. When the organic groups attached to oxygen are identical, the ether is classified as symmetrical. दोनों जो है वो सेम है, R ग्रुप्स जो है वो सेम है, तो उसको हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ROR। ये जो एग्जांपल दी हुई है इसमें यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी इथाइल है, तो ये किसकी एग्जांपल होगी? सिमेट्रिकल ईथर की। जब दोनों R ग्रुप्स जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं वो सेम होंगे तो दैट ईथर विल बी कॉल्ड एज सिमेट्रिकल। लेकिन अगर वो दोनों डिफरेंट हैं, जो ऑक्सीजन के साथ R ग्रुप्स अटैच्ड हैं, दे आर डिफरेंट, we call it unsymmetrical ether and generally represented by ROR dash. Look at this example. इसमें बेटा इस साइड पे मिथाइल ग्रुप है, इस साइड पे इथाइल है, तो this is unsymmetrical ether. This is an example of unsymmetrical ether. So diethyl ether is a symmetrical in the above example and ethyl methyl ether is an unsymmetrical ether. So ये भी इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हम नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स जो है उसको डिस्कस करते हैं। ईथर्स कैन बी नेम्ड इन टू वेज। फर्स्ट जो है वो कॉमन नेम्स और सेकंड वन इज IUPAC के अकॉर्डिंग कैसे नेम देते हैं। इंटरेस्टिंग है इनके नेम्स। कॉमन नेम्स क्या है कि टू ऑर्गेनिक ग्रुप्स अटैच टू द ऑक्सीजन एटम आर नेम्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। अगर तो बेटा जो दो R ग्रुप्स ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं वो दोनों डिफरेंट हैं तो फिर हम उनको अल्फाबेटिकली नेम देंगे और एंड में ईथर जो है वो एज अ सफिक्स यूज करेंगे एंड द वर्ड ईथर इज एडेड एट द एंड। और अगर वो दोनों ग्रुप्स जो हैं वो सेम हैं तो फिर हम प्रीफिक्स डाई यूज करेंगे। डाई इथाइल, डाई मिथाइल, डाई आइसोप्रोपाइल, डाई एन प्रोपाइल, फिर हम डाई जो है वो यूज करेंगे। अगर डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकली नेम देंगे अल्काइल ग्रुप्स को और अगर सेम है तो फिर हम उसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? डाई। सो लुक एट द एग्जांपल्स। इस एग्जांपल में आपके जो दोनों R ग्रुप्स हैं वो सेम है और इनके नेम क्या है? मिथाइल। सो वी कॉल डाई मिथाइल ईथर। लुक एट द नेक्स्ट वन। ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, तो इसमें अल्फाबेटिकली देंगे इथाइल मिथाइल ईथर। लुक एट दिस वन। ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल, डाई इथाइल ईथर। लुक एट दिस वन। इथाइल ग्रुप है और ये प्रोपाइल है, तो हम इसको अल्फाबेटिकली इथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। लुक एट नेक्स्ट वन।
ये भी डिफरेंट है, मिथाइल है, ये फिनाइल है, इसको भी अल्फाबेटिकली नेम देंगे, मिथाइल, फिनाइल, ईथर। सो कॉमनली ईथर्स दे आर नेम्ड इन दिस वे। अब हम नेक्स्ट जो देखते हैं कि IUPAC सिस्टम, ये इंटरेस्टिंग बेटा सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग इंटरेस्टिंग वे में ईथर्स को नेम देते हैं। इन दिस सिस्टम ईथर्स दे आर नेम्ड एज एल्कोक्सी एल्केन्स। क्या कहते हैं ईथर्स को? एल्कोक्सी एल्केन्स। अब ऑक्सीजन के साथ हमने जैसे प्रीवियसली पढ़ा कि हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, R मोस्टली अटैच है या फिनाइल ग्रुप। R सेम भी हो सकता है, R डिफरेंट भी हो सकता है। जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप होगा अगर डिफरेंट है, तो जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है विद एन ऑक्सीजन, उसके साथ आप ऑक्सीजन भी अटैच करेंगे और उसको हम क्या बना देंगे, क्या कॉल करेंगे? दैट विल बी एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट। Smaller alkyl group with an oxygen atom is called an alkoxy substituent. और जो larger alkyl group होगा that will be taken as a parent molecule and given the last name suffix. जो RO group, जो smaller group है RO, वो alkoxy substituent, और जो larger group होगा वो पेरेंट मॉलिक्यूल होगा और वो एंड पे होगा। और अगर बेटा सेम है तो फिर तो स्मॉलर और लार्जर वाला केस नहीं है, फिर उसमें से एक को एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट और एक जो है वो पेरेंट आपका मॉलिक्यूल होगा। लाइक ये ग्रुप्स यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हुए हैं कि मिथाइल RO, मिथाइल के साथ अगर O हो तो क्योंकि ये मीथेन से निकला हुआ है मिथॉक्सी, एल्कोक्सी, मिथॉक्सी। इथेन के साथ ऑक्सीजन है तो इथॉक्सी, ठीक है। इसी तरह प्रोपेन के साथ होगा तो प्रोपॉक्सी। ये इस तरह आप बोलेंगे कि जो स्मॉलर वन है उसको हमने एल्कोक्सी बनाना है और जो लार्जर वन है उसको हमने एज अ पेरेंट मॉलिक्यूल लास्ट नेम देना है। लेकिन अगर दोनों सेम है तो एक एल्कोक्सी होगा और दूसरा पेरेंट होगा। लुक एट दीज फॉर्मूलाज। दोनों ग्रुप्स बेटा आपके सेम है। इसमें से एक जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? मिथॉक्सी, एल्कोक्सी, मिथॉक्सी। और दूसरा पेरेंट मॉलिक्यूल एक कार्बन के साथ क्या होता है? मीथेन, एल्केन, मिथॉक्सी मीथेन। ये जो एक ऑक्सीजन है ये इस एल्काइल ग्रुप के साथ मिलके एल्कोक्सी बना देगा और एल्कोक्सी वही होगा जो मीथेन है, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। और ये कौन सा? ये एल्केन बनाएगा। एल्केन जितने कार्बन होंगे उतना ही एल्केन होगा, मिथॉक्सी मीथेन। लुक एट दिस वन। अब इसमें ये स्मॉलर ग्रुप है और ये लार्जर ग्रुप है। जो स्मॉलर ग्रुप है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके एल्कोक्सी बनाएगा। दिस वन इज मिथॉक्सी। और 2 कार्बन वाला क्या होता है? इथेन, मिथॉक्सी इथेन। इसी तरह नेक्स्ट देखें, ये दोनों सेम है। एक जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाएगा? इथॉक्सी, और दूसरा इथेन, इथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट देख लें, ये इथाइल ग्रुप है, ये प्रोपाइल है। तो अब इसमें स्मॉलर जो है वो एल्कोक्सी बनाएगा, इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन। लुक एट दिस वन। ये जो स्मॉलर ग्रुप है इसके साथ मिलके क्या बनाएगा? मिथॉक्सी। और ये क्या है? बेंजीन। किससे डिराइव हुआ है? बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। So IUPAC names, they are not common as they are difficult. So usually ethers they are known by their common names. But IUPAC names they are also interesting. थोड़ा सा बेटा आप और करें तो आपको बात क्लियर हो जाएगी और इंशाल्लाह आपको नेम देना जो है वो भी इजी लगेगा। नेक्स्ट जो है वो हम आपका लेक्चर जो है वो एंड हो गया। हम एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक से रिलेटेड वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 फर्स्ट वन, उसका ए पार्ट, राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब ये अल्कोहल से रिलेटेड है, उसमें हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं। सो हम देखते हैं कि आपके पास जो स्ट्रक्चर है, लुक एट दिस वन। हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बी आता हो। 1 2 3। सो ये 3 कार्बन है, इसका मतलब है ये प्रोपेन है। और हमने पढ़ा था कि अल्कोहल्स में E इज रिप्लेस्ड विद OL, प्रोपानॉल। और किस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है? सेकेंड कार्बन। सो 2 प्रोपानॉल,
The name of this compound is 2-propanol. Look at this one. अब इसमें 1 2 3 ये भी आपका क्या है, प्रोपानॉल. प्रोपानॉल किस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, 1 कार्बन के साथ. 1 2 3 हम इस साइड से करेंगे जिसमें कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच, दैट विल गेट द लोएस्ट पोजीशन. और 2 पे आपका सब्स्टिट्यूएंट अटैच है. पहले हम सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे 2 मिथाइल 1 प्रोपानॉल. 2 मिथाइल 1 प्रोपानॉल. लुक एट दिस वन. 1 2 3 ये भी आपका प्रोपानॉल है. सेकेंड कार्बन के साथ OH ग्रुप भी अटैच है. सेकेंड के साथ आपका सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच है. 2 मिथाइल 2 प्रोपानॉल. 2 मिथाइल 2 प्रोपानॉल. लुक एट दिस वन. इसमें अब 1 2 3 4 सेकेंड कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है और ये ब्यूटानॉल है. 2 ब्यूटानॉल. 2 ब्यूटानॉल. B part is write structure formulas for the following compounds. ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसको अच्छे तरीके से आपने इसको लर्न करना है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है. सो फर्स्ट वन ये जो है ये हमने पहले भी पढ़ा, जो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स की एग्जांपल है ग्लाइकोल. 1,2 इथेन डायोल भी इसको कहते हैं ग्लाइकोल. कि CH2 दो CH2 हैं इथेन और एक हाइड्रोजन जो है उसकी जगह कौन सा ग्रुप अटैच है, OH, और दूसरे हाइड्रोजन की जगह भी OH ग्रुप. इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोल. नेक्स्ट वन इज ग्लिसरोल. ग्लिसरोल में प्रोपेन है और हर कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है. 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल और सिंपली इट इज कॉल्ड एज ग्लिसरोल. नेक्स्ट इज कार्बोलिक एसिड. कार्बोलिक एसिड इज द नेम ऑफ फिनोल. फिनोल में एरोमेटिक रिंग में कौन सा ग्रुप अटैच होता है, OH. नेक्स्ट वन इज एसिटोफिनोन. इसमें भी आपका जो बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, उसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, CH3 C डबल बॉन्ड O. ये आपका एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर है. पिक्रिक एसिड दैट इज आल्सो सिंपल. बेसिकली ये फिनोल ही है. 2 4 और 6 पोजीशन पे आपके नाइट्रो ग्रुप हैं. 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल और commonly it is called as picric acid. So this is all about the structural formulas of these compounds. Look at question number 19 part A. ये बेटा ईथर्स जो हमने अभी नेमिंग पढ़ी है उससे रिलेट करता है. नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स. तो मैंने दोनों नेम्स लिखे हैं, कॉमन भी और IUPAC के अकॉर्डिंग भी. सो फर्स्ट आप देख लें, आपका जो ये ग्रुप है ये कौन सा है, प्रोपाइल, और ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल. सो हमने अल्फाबेटिकली नेम देना है मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर. और जब हमने इसको IUPAC के अकॉर्डिंग देखना है तो जो स्मॉलर ग्रुप है वो मिथॉक्सी प्रोपेन, देन इट विल बी मिथॉक्सी प्रोपेन. नेक्स्ट वन देखें, दोनों सेम ग्रुप्स हैं, डायफिनाइल ईथर. और जब हमने IUPAC के अकॉर्डिंग तो सेम है, एक जो है वो अल्कोक्सी बन जाएगा फिनॉक्सी और दूसरा जो है वो पेरेंट मॉलिक्यूल बेंजीन. नेक्स्ट वन ये ग्रुप्स भी सेम है, आइसोप्रोपाइल, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर. और जो IUPAC के अकॉर्डिंग प्रोपॉक्सी प्रोपेन. लुक एट द नेक्स्ट वन, मिथाइल एंड फिनाइल. मिथाइल फिनाइल ईथर या मिथॉक्सी बेंजीन. Look at the next one, प्रोपाइल ग्रुप है इथाइल और इथाइल एन प्रोपाइल ईथर और फिर जो स्मॉलर है वो इसके साथ मिलकर अल्कोक्सी इथॉक्सी प्रोपेन. These are the names of these compounds commonly और IUPAC के according. Then write the structure formula of the following compounds. मिथॉक्सीईथेन. मिथॉक्सीईथेन का मतलब है एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है और दूसरी साइड पे इथाइल. इथॉक्सीबेंजीन, एक साइड पे इथाइल ग्रुप है और दूसरी साइड पे फिनाइल ग्रुप है. सोडियम इथॉक्साइड, इथाइल ग्रुप है और दूसरी साइड पे ONA, ये सॉल्ट बन गया ONA. इसी तरह सोडियम फिनोऑक्साइड, बेंजीन C6H5 और ONA, हाइड्रोजन किसके साथ रिप्लेस हो गया अल्कोहल का, Na के साथ, इसको ये भी सॉल्ट बन गया सोडियम फिनोऑक्साइड. प्रोपॉक्सी प्रोपेन, एक साइड पे आपका, दोनों साइड पे कौन से ग्रुप्स हैं, प्रोपाइल, एक जो है वो अल्कोक्सी बन गया और दूसरा जो है वो एज अ पेरेंट मॉलिक्यूल
propane. So this is propoxypropane. This is all about today's lecture. अब देख लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए. फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स. एल्कोहल्स जो हैं, एल्कोहल्स एंड फिनोल्स, दे आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स एंड बेंजीन रिस्पेक्टिवली. और इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, दे रिजेंबल विद वाटर मॉलिक्यूल, सो वी कॉल देम हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स. हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, के वाटर के साथ जो है वो इनका स्ट्रक्चर जो है वो रिलेट करता है. वाटर का एक हाइड्रोजन इन केस ऑफ एल्कोहल दैट इज रिप्लेस्ड विद आर, एंड इन केस ऑफ फिनोल्स इट इज रिप्लेस्ड विद फिनाइल ग्रुप. फिर हमने जनरल एल्कोहल्स का जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप. और फिनोल्स में कि OH ग्रुप इज अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग, उसके साथ उसका अटैच है. जनरल फॉर्मूला जो है अल्कोहल का दैट इज ROH. और फिर इस तरह हमने उसकी ईथर्स का भी पढ़ा कि ईथर्स में जो ऑक्सीजन के साथ दो ऑर्गेनिक ग्रुप्स बॉन्ड बनाते हैं वो दोनों एल्काइल या फिनाइल हो सकती हैं. अब वो जो एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, दे मे बी सेम, दे मे बी डिफरेंट. और जनरल रिप्रेजेंटेशन ईथर्स की क्या होती है, ROR. और डिपेंडिंग अपॉन के R ग्रुप सेम है या डिफरेंट है, ईथर्स दे आर क्लासिफाइड इनटू सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल. अगर सेम होंगे तो देन दे आर सिमेट्रिकल, अगर डिफरेंट होंगे तो देन दे आर अनसिमेट्रिकल. देन वी डिस्कस द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स, उसमें कॉमन नेम्स भी हमने डिस्कस किए और IUPAC के अकॉर्डिंग भी नेम्स जो हैं कि कैसे देते हैं वो भी सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए. इसी तरह फिनोल्स जो हैं, फिनोल कार्बोलिक एसिड है और जो पेरेंट और सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है दैट इज फिनोल, और उसको हम एज अ पेरेंट मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं. और बाकी अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं तो फिर हम नंबरिंग देके, और नंबरिंग हम ऐसे स्टार्ट करेंगे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है दैट विल ऑलवेज गेट द फर्स्ट पोजीशन, और फिर हम उसकी पोजीशन जो है सब्स्टिट्यूएंट की मेंशन करके फिनोल्स को नेम दे सकते हैं. ईथर्स को भी कॉमन नेम्स भी हमने पढ़े. कि कॉमन नेम्स में हम क्या करेंगे कि अगर दोनों आर ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट हैं तो फिर हम उनको अल्फाबेटिकली नेम देंगे और ईथर एज अ सेपरेट वर्ड एज अ सफिक्स यूज करेंगे. लेकिन अगर दोनों सेम हैं तो फिर हम एज अ प्रीफिक्स डाई यूज करेंगे, डाई इथाइल या डाई मिथाइल ईथर. IUPAC के अकॉर्डिंग दे आर गिवन द नेम एल्कोक्सी एल्केन्स. उसमें से जो स्मॉलर R ग्रुप होगा वो O के साथ मिलके एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे एक्ट करेगा, और जो लार्जर ग्रुप होगा दैट विल बी पेरेंट मॉलिक्यूल. तो इसके अकॉर्डिंग भी हमने इसकी नेमिंग जो है वो हमने डिस्कस की. फिर इन्हीं से रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 18 और 19 जो है उनको भी हमने सॉल्व किया. आपकी बेटा होम असाइनमेंट है फर्स्ट वन. सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन लर्न करना है, हाउ एल्कोहल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप्स, गिव एग्जांपल्स आल्सो. सेकंड वन इज व्हाट आर फिनोल्स. Third is differentiate between symmetrical and unsymmetrical ethers with example. Fourth one is write the structural formulas for lactic acid and tartaric acid. And the fifth one is how ethers are named by IUPAC system. This is all about today's lecture. I hope it will be clear. May Allah Almighty bless you all. Thank you very much.